After a full 20 years, the two Thackeray brothers are back, and what a reunion it was, because it was a massive falling out, a fight for legacy between the two bhais, and now both of them are back. The wheel has come a full circle. And why not? Because this is a big stakes battle. At the stake is crucial BMC elections, which will decide Mumbai ka Malik kaun. But will this also, in a sense, signal the direction in which national politics is going, not just in Maharashtra, but across the country? In an event that was tinged as much with emotion as political calculations, Raj and Uddhav Thackeray today visited Bala Saheb's memorial early in the morning before officially announcing their alliance. And the rallying cry was familiar. With the Thackeray Bandhu together, they were playing for the Marathi Manus sentiment, warned against any kind of division of votes. In fact, Uddhav Thackeray almost seemed to echo Yogi Adityanath when he said, "Batenge to bikrenge." यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही, शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत. आणि त्या मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. आणि मला असं वाटतं तिथून त्या आज आम्ही एकत्र येण्याची सुरुवात त्या वाक्यापासून झाली. So what does this mean for the elections in Maharashtra, and is this giving a bigger picture for India as well? The BJP mocked this reunion as a desperate battle for survival, as a fight for their existence by the Thackerays, the BJP and the Shiv Sena. Eknath Shinde also questioned whether this was an effort to try and keep their vote bank together. Interestingly though, the collateral damage in all of this seems to be the Congress party, because even on a day when the Shiv Sena UBT was uniting with the MNS, one of their spokespersons decided to train their guns on the Congress. देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं. इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी, परंतु आता झालेल्या युत्या सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी आणि आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी. Congress party has no people, no voters in Mumbai. Their ship is going in river crash, and we are happy to see this, because this election is against BJP and Shiv Sena, and Congress is in these elections only people for clapping and seeing the match. And that brings us to the big questions on which the buck stops here. Will the Mumbai model now increasingly be replicated across India, where allies are telling the Congress, "Ekla chalo"? And is the two bhai reunion, the bhai plus bhai, going to be a thorn in the flesh of the BJP in the coming elections? Is this the grand restructuring, the big shuffle that was pretty much going to define the next few months leading up to the big 2029 battle? Tuhin Sinha, national spokesperson of the BJP, joins us along with senior journalist Sameer Chaugankar. Political analyst Sanjay Jha is with us, spokesperson of the Shiv Sena UBT, Anand Dubey, and senior journalist Ashutosh is also here with us. But Tuhin Sinha, let's start with you. You might be smiling, you might be saying, "Oh, this is just like Putin and Zelensky," but the fact of the matter is, you have got these two parties who between them can target a population of 26% Marathis in Mumbai, 11% Muslims, and a fraction of the 11% of Dalits. You should be worried. Good evening, Padmaja. Good evening, everybody. You know, there's an old saying, 0 multiplied by 0 is 0. So when two failed dynasts come together,
it won't make any difference. But at least, Rahul Gandhi has been accusing us of dividing the country. We are uniting families. So, that's a positive thing. But on a more serious note, Twin Sinha, unite karte karte, everyone will unite against you. I hope you don't unite Eknath Shinde also with Uddhav Thackeray. आपने कुछ calculations बताएं वोट शेयर के, मैं आपको कुछ calculations बता रहा हूं. BMC has 227 seats. The Uddhav Sena had 184 seats last time. BJP 182. INC 131. Now, INC would struggle to open its account this time. At least, Anand Dubey will agree with me on this. So, when it comes to Uddhav Sena, 50% of their votes have either shifted to BJP because they were with Uddhav Sena only because of the Modi factor, only because of BJP, and a lot of them have shifted to Eknath Shinde. So Uddhav Sena is really going to struggle in these elections. We are going to gain at the cost of Uddhav Sena because, like I said, a good 40 to 50% of their voters was because of us. And also Congress would completely collapse. So, it's BJP-led alliance all the way, and I don't see. But also look at the important issues. Okay. In the last few years, I mean, till 2018-19, the budget of BMC used to be 27,000 crores. And, Uddhav Sena would indulge in brazen corruption. Today, it's 75,000 crores. And you can see the difference in Mumbai. Whether it is Coastal Road... It wasn't the Uddhav Sena which was engaging in corruption. It was the Shiv Sena, according to you, which was engaging in corruption. And some of that Shiv Sena is with you right now, Twin Sinha. It wasn't the Uddhav Sena engaging in corruption. Please, let's be very clear. It was the Shiv Sena. Since the last BMC elections, 80 kilometers of metro rail has come up in brisk breakneck speed. The coastal road has been prepared in breakneck speed. All of that has happened because of the leadership of Devendra Fadnavis, and the entire Mumbai realizes this. Okay, we will come to that election speech in just a bit. Talking now about the politics of what has happened. आनंद दुबे 0 + 0 भी 0, 0 - 0 भी 0, 0 बटा 0 भी 0, सब कुछ 0 ही है. बीजेपी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. पद्मजा जी नमस्ते. नमस्ते. कोई हमें जीरो कहे उनकी समझ, लेकिन हम तो हीरो हैं. और जब हमें आज देवेंद्र जी ने पुतिन और जेलेंस्की की उपमा दी है, तो आप सोचिए कि ये कितने घबराए हैं, जबकि हम कोई पुतिन और जेलेंस्की नहीं हैं. हम तो राम और भरत समान हैं. बहुत वर्षों के बाद, करीब 20 वर्ष के बाद, दो भाई जो एक ही साथ बचपन बिताए हैं, एक ही घर में रहे हैं, एक ही गुरु से राजनीति सीखे हैं, आज एक मंच पे आते हैं. किस लिए? क्योंकि मुंबई में जिस प्रकार कुछ लोगों ने अपनी नज़रें गड़ाई हुई हैं कि मुंबई को बर्बाद कर देना है, मुंबई को लूट लेना है, मुंबई को गिरवी रख देना है, मुंबई में कुशासन स्थापित कर देना है, उसके खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं. ठीक है, अभी तुहिन जी ने बताया कि बहुत सारे नगर सेवक भाग गए, बहुत सारे ये हो गया. कोई बात नहीं, मुंबई की भगवान रूपी जनता 15 तारीख को ये तय कर देगी कि कौन असली शिवसेना है, कौन नकली शिवसेना है, कौन ट्रिपल इंजन की सरकार के झूठे वादे करती है और कौन जमीन पर उतरकर काम करती है. आज पर्यावरण की जो दुर्गति इन्होंने कर रखी है मुंबई में, किसी से छुपा नहीं है. दिल्ली का एयर क्वालिटी अगर सबसे खराब है तो देश में उसके बाद मुंबई भी अब पीछे आ रही है. सारे मैंग्रोव्स नष्ट कर रहे हैं, आरे के पेड़ पहले ही काट चुके हैं. जिस प्रकार कंस्ट्रक्शन के नाम पर लूट मची हुई है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है. ऐसी मुंबई हमें नहीं चाहिए भैया. हमें वो मुंबई चाहिए जो 30 सालों से लगातार हमको आशीर्वाद क्यों दे रही है. मुंबई के कुछ मुद्दे हैं. पद्मजा जी, आप मुंबई आते जाते रहती हैं. मुंबई का जो सबसे बेसिक मुद्दा है कि मुंबई में अच्छी सड़कें हों, अच्छे शौचालय हों, अच्छे अस्पताल हों, स्वास्थ्य की अच्छे शिक्षा के अच्छे काम हों, यातायात के लिए बसें अच्छी हों, पानी के लिए एक आपूर्ति का साफ सुथरा जल हो, यही बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल्स हों. इन सब चीज़ों को लेकर पिछले 30 वर्षों में जो हमने काम किया है, हम जनता को बताएंगे. और दूसरा, ये क्या पोस्टर लगाते हैं, बटेंगे तो कटेंगे. अरे भैया, कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? हम तो कहेंगे पद्मजा जी, न हम बटेंगे न हम कटेंगे. बीजेपी के अहंकार तब छटेंगे जब मजबूती से हम इनके सामने डटेंगे, तभी तो इनके पंख कटेंगे और शिवसेना और मुंबई कर अच्छे पंख लगा के जनता के साथ उड़ेंगे. हम इस सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं. मुंबई में रहने वाला मराठी मानुस आनंद दुबे, वो सब तो ठीक है, पर आपको जब ये सब सोचना चाहिए था. इस सब के बीच में आपने कांग्रेस के ऊपर क्यों अपना निशाना कर दिया है? आप बीजेपी से लड़िए. इस सब के बीच में आप कांग्रेस से क्यों लड़ रहे हैं? कांग्रेस के बारे में
पद्मजा जी लाइट मोटर पे कहूँगा कि कांग्रेस के बारे में अगर कहूँ तो कांग्रेस खुद भटक गई है अपने रास्ते से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुंबई में केवल एक टूरिस्ट है, एक पर्यटक है। आती है, गाजे बाजे के साथ घूमती है, टहलती है, घूमती है, तस्वीरें खींचती है, फिर चली जाती है। पिछले 30 वर्षों से लगातार मुंबई में कांग्रेस हार रही है और मुंबई का और कांग्रेस का कोई संबंध नहीं रहा है। मुंबई का संबंध रहा है तो शिवसेना से रहा है, मुंबई का संबंध रहा है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से रहा है। दोनों भाई इकट्ठे आए हैं, आधी लड़ाई हम आज जीते हैं और आधी लड़ाई हम 15 को जीतेंगे, 16 को हम पूरी ताकत के साथ आपसे फिर बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें पता है मुंबई में जिस प्रकार शिवसेना ने काम किया है, बूथ लेवल पर जाकर हर घर में नल, हर नल में जल से लेकर एम्बुलेंस की सेवा से लेकर स्वास्थ्य की सेवा से लेकर, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे कामों के हमें अधिकार नहीं है। अब आप कहेंगे लोकल ट्रेन और वेस्टर्न सेंट्रल ट्रेन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है। अब आप कहेंगे आनंद जी, एक सेकंड, ये ठीक है कि आज आपका नया नया अलायंस हुआ है तो आप जो हमारे पास और है एमएनएस के साथ जुड़ेंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इन द असेंबली इलेक्शंस द कांग्रेस हैड अ बेटर वोट शेयर देन यू। असेंबली चुनाव में कांग्रेस का आपसे बेहतर था रिजल्ट, जहां तक वोट शेयर का सवाल है। तो उनको टूरिस्ट कह देना ठीक है। अब आपको आपकी जानकारी राम और भरत साथ आ गए हैं तो ठीक है। एक वक्त भरत ने कहा था कि राम ने खड़ाऊ चुरा लिए, बट वो अलग बात है। पद्मजा जी बस 2 सेकंड लूंगा। हाँ। मुंबई में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है पार्लियामेंट की, 3 हमने जीते थे, 1 हमको 45 वोट से जबरदस्ती हराया गया, मतलब 4 हमारे पास है। तो स्ट्राइक रेट किसका अच्छा है, किसके पास अच्छे वोटर्स हैं, ये सबको पता है। मुंबई में कांग्रेस के जो नगर सेवक पिछले 30 वर्षों से आते हैं, वो 20, 25, 30, एक बार केवल 2007 में जब गुरदास कामत जी अध्यक्ष थे, तब उनके नेतृत्व में एक बार कांग्रेस 60 पार कर पाई थी, वरना कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं है। कांग्रेस हमारी दोस्त ही है, लेकिन अब कांग्रेस भटक गई है। कांग्रेस 2019 में हमारी नाव में बैठी और उसको हमने पानी पिला के किनारे लगाया, जैसे होश में आई हमारी नाव छीनना चाहती है। तो राजनीति में कोई अपनी नाव नहीं देता किसी को। राजनीति में हम आए हैं सेवा करने के लिए, उसके लिए हमें ताकत चाहिए, हमें पावर चाहिए, तो लोगों का दिल जीतेंगे, काम करेंगे। जो हमारे साथ आया वो हमारा, जो नहीं आया वो गवारा। बताइए संजय झा, is this going to be the model moving forward where you will have more Anand Dubes popping up in Uttar Pradesh, in states like Jharkhand, and they are going to saying कि भाई जिस नाव में आपने सवारी की उसी में छेद कर दिया, ऑफलोडिंग। तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये तो पहले कांग्रेस में ही थे, तो ये सूचना मैं सबको दे दूं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। लेकिन खैर, anyway, let's skip all his rhetoric. The truth is this, that the Congress has a hard battle in the BMC, and one of the reasons is that Uddhav's party has taken a lot of leaders and talent away from the Congress as well. For Uddhav, this is an existential election, frankly, because Mumbai is the base, and if the UBT struggles here, then I think they have a long-term political extinction to worry about. So it's a real problem. At the same time, I mean, I would like to make one clarification at the very beginning. Tohin was being so disingenuous when he was blaming the Shiv Sena for corruption. But even when Shiv Sena was running the BMC, it was always in alliance with the BJP. So, I mean, it's rather absurd or atrocious to assume that the people of Mumbai and India watching this program don't know that if you accuse the Shiv Sena of corruption, that corruption you are equally part of. But that's in the past now. Sanjay Jha, my question is, looking forward, is Mumbai and the alliances being formed now going to give a roadmap of what happens across the country, where slowly regional parties are going to strike out on their own and offload the Congress? Why do I say that? There's been some examples in the recent past. Let's take a look at how this Thackeray model could be replicated, because there is similar disenchantment with the Congress in other states as well. The most recent example was Bihar. The Congress won in just 6 out of 61 seats. Their strike rate actually decreased in 5 years from 27% to less than 10%. In fact, this strike rate was the lowest among all the Mahagathbandhan partners. Their contested vote share stood at 34.1%. The other state is Maharashtra, where the assembly elections, if we look at it, their vote share slipped from 16% to around 12% in just 5 months. That is between the Lok Sabha elections and the assembly elections in 2024. The Congress's vote share actually slipped drastically. They were wiped out in most regions.
half of their seats came from their stronghold in Vidarbha, and very senior leaders, people like Prithviraj Chavan, who said, I'm going to be the CM candidate, Yashomati Thakur, Bala Saheb Thorat, all of them lost their elections. And then who can forget Jharkhand Mukti Morcha and Jharkhand, where there were rumors in the middle that perhaps the JMM might just cross over. Why? Because the Congress did not humor them during the Bihar elections. There was no seat sharing which was worked out. And a MIF JMM actually said, we will not contest Bihar at all. And you know what? We might just even penalize you and remove you from government in Jharkhand as well. And that's why we are asking the question, Ashutosh ji, could this actually be a model replicated in other states as well? Fight it out minus the Congress. Let the regional parties fight the BJP directly. Ashutosh ji, can you hear me, sir? Question is to me? Yes, that's right. Okay. See, first of all, I see with a lot of skepticism about this alliance between MNS and Uddhav Thackeray and the Raj Thackeray for the simple reason because this underlines the fact that the Uddhav Thackeray is feeling nervous. Otherwise, there was no reason that Raj Thackeray and Uddhav Thackeray are coming together. This is a sign of weakness. This is not a sign of strength. Ideally, the Uddhav Thackeray should have gone to the Congress and should have continued with the NCP. But instead of that, if he thinks that Raj Thackeray will be an asset, might be because the last assembly election, Raj Thackeray contested 25 assembly seats, he got only 4% vote share. But the fact of the matter is that today Raj Thackeray, in my opinion, is an spent force. But if Uddhav has gone to the Raj Thackeray thinking about it, the 28% of the 29% of the Marathi votes will remain consolidated because otherwise the Raj Thackeray would have dented 1%, 2% or 3-4%, would have really damaged Uddhav Thackeray in that sense. So the whole calculation is that you are trying to have a committed Marathi voters who has been voting to the Bala Saheb Thackeray for the God knows how many years, and Uddhav Thackeray's aim is to just keep that together. Otherwise, there was a possibility of it flitting away. But they are also thinking, but there is also a danger. Danger is what? If Raj Thackeray is Uddhav Thackeray, will the other than Marathi voters would like to vote for the Shiv Sena Uddhav Thackeray? Because Raj Thackeray, his team is known for bashing up all the Bhaiyas, Biharis and UPs. So what will happen to that voters? Do you think And they made a what about the mistake? Muslim Do you voters? think they made a mistake by getting rid of the Congress? No, I think it's basically what is happening in India Alliance in Maharashtra. They are trying to commit suicide, nothing else. I'm using a harsh word, but the fact is this: if you are together, but in one election you will be together. In next election, no, we will not be together. Shiv Sena will be abusing Congress will be abusing NCP will be abusing someone and something. This doesn't work. People are too smart. They know what is happening around. In Lok Sabha elections, you were together. In Assembly election, you were together. Now suddenly you decide that then in municipal election, we'll be fighting on our own because we have to protect our turf. So whom you are trying to fool? Ideally, they should have been together, fighting as one united unit, irrespective of the fact whether the BMC is controlled by Shiv Sena for a very long time. But today, Shiv Sena is not the Shiv Sena we used to know. Shiv Sena is much weakened, and that's one reason that they had gone to the Raj Thackeray and saying, "Let's come together." See, the brothers fought like anything. Brothers never liked each other in that sense. Political suicide hai, to pass on the baton to Uddhav Thackeray, not to the Raj Thackeray. हेलो आनंद दुबे जी, क्या ये पॉलिटिकल सुसाइड कर रहे हैं आप अहंकार में आकर के? कांग्रेस को साथ रखना चाहिए था। पद्मजा जी, कमाल करती हैं आप। अरे उद्धव ठाकरे जी की विनम्रता और राज ठाकरे जी की बात करने की शैली क्या दो काफ़ी नहीं है? उद्धव ठाकरे जी के कोरोना के संकट काल के समय किए गए अच्छे गवर्नेंस की तारीफ WHO से लेकर सुप्रीम कोर्ट करती है। पिछले 30 वर्षों से लगातार शिवसेना सड़कों पर रहकर लोगों की सेवा करती है। राज ठाकरे जी समय समय पर मराठा मानुष के मुद्दे को उठाते हैं। हिंदुत्व की बात करने वाली दोनों पार्टियां हैं, ये दिखाई नहीं देती है? अरे 30 साल तो हम इसी कांग्रेस से दूर रहे, इसी कांग्रेस के खिलाफ लड़े। देखिए, राजनीति में फायदा और नुकसान देखने वाली हमारी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी है जनता की सेवा करने की प्राथमिकता रखने वाली। मुंबई में शाखा प्रमुख के माध्यम से
एम्बुलेंस से लेकर और जीवन से लेकर मरण तक के हर बीच के समय शिवसेना खड़ी है, सड़कों पर शिवसेना है, लोगों के मुद्दों को लेकर। अरे आनंद जी, बट कभी हाँ कभी ना नहीं हो सकता ना। कभी आप मनसे को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी कांग्रेस के साथ बैठ जाते हैं, कभी कांग्रेस को आप लीकी बोट कहते हैं, मनसे के साथ बैठ जाते हैं। ऐसा पॉलिटिकल सुसाइड है, आशुतोष कह रहे हैं। खुद ही के पैर में कुल्हाड़ी मारने पे तुले हुए हैं। ठीक है, आशुतोष जी एक सम्मानित विश्लेषक हैं, जरूर उनकी भावना होगी, हम आदर करते हैं। 140 करोड़ लोगों में सबकी अपने अलग अलग बात करने का तरीका है, सोचने का तरीका है। उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया। मुंबई की जनता ही जनार्दन है, वो तय करेगी कि ये पॉलिटिकल सुसाइड है या एक 16 जनवरी को शाम तक एक जीत का जश्न है। ये तो हम और आप अभी तय। आशुतोष जी, अभी चुनाव पीक पर आएगा। चुनाव के प्रचार शुरू, there is a larger issue and I think what the India दबा के प्रचार करेंगे और फिर देखेंगे is that you are fighting with the BJP, a resurgent BJP after 2024 parliamentary elections. They have been winning with a huge margin in Bihar, in Maharashtra, in other states. And then you decide, no, we'll not fight together. We'll fight like a fragmented units. This doesn't work. I think somewhere down the line, India Gathbandhan has to realize that if they have to survive, then they have to be together. If they are fighting like a fragmented groups, then there is no chance for them to survive. And even if Uddhav Thackeray might win a few seats in BMC elections, they have to think about the future in the next 5 years or the next 10 years, where they will be. Uddhav Thackeray's is already a much weakened after Eknath Shinde has walked away. What is the guarantee that the rest of the MLA, the rest of the MPs will stick with the Uddhav Thackeray? What is the guarantee? What is the guarantee, Anand Dubey? Today? ओ माय गॉड पद्मजा जी, अब सारी विश्लेषण, सारी गारंटी यही तो नहीं कह सकते जीवन में। अभी चुनाव को समय है, हम ये पहले चुनाव जीते। कौन भाग्य विधाता है कि 29 में क्या होगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, ये तो रामायण वाली चौपाई हो गई। जीवन मरण हानि और लाभ जस अपजस विधि के हाथ। जो चीज विधि के हाथ है उस पर आज हम बात नहीं कर सकते। हम अपनी पार्टी की बात मुखरता से रखेंगे। जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता अच्छा प्रतिसाद दे रही है। दोनों ठाकरे बंधु एक ब्रांड है और ठाकरे बंधु के साथ साथ अमराठी लोग भी बहुत तादाद में हमारे साथ हैं। राज ठाकरे जी ने, उद्धव ठाकरे जी ने कभी किसी को अपमानित करने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुंबई में आप 40-50 साल से रहते हैं तो हमारा भी सम्मान कीजिए, और लोग करते हैं। हमारे जैसे जो मुंबई में रहने वाले नॉर्थ इंडियन लोग हैं, जो अपने आप को मराठी जैसा ही समझते हैं, हमारे सरनेम कुछ भी होंगे लेकिन हम अपने आप को 1% भी मराठी से कम नहीं समझते। इसका हमें गर्व है, स्वाभिमान है। अगर बीजेपी नहीं, आनंद जी को बता दूं कि वो जो मुंबई की सड़कों पर पिटने वाले लोग थे, जिनको पीटा था, राज ठाकरे के लोग थे, वो बिहार यूपी के लोग थे। आप डिफेंड कर रहे हैं उनको, वो सम्मान दे रहे थे। जब वो थप्पड़ मार रहे थे तो सम्मान दे रहे थे। वो देखिए, कमाल करते हैं आप। आपको राज ठाकरे जी का थप्पड़ मारना दिखा, लेकिन 4-4, 5-5 लोगों को राज्यसभा शिवसेना भेजती है, वो नहीं दिखा आपको। चलिए, आपने ये तो मान लिया कि 4-4, 5-5 लोग मराठी मानूस नहीं थे जिनको राज्यसभा भेजा शिवसेना ने। आज शिवसेना बहुत इंटरेस्टिंग है। आज शिवसेना एक भी आदमी को राज्यसभा भेजने की स्थिति में नहीं है। आज ये स्थिति है शिवसेना की कि वो किसी को राज्यसभा में भेज पाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी का राज्यसभा खत्म हो रहा है, अब वो किसी को भेजने की स्थिति में नहीं है। आज नहीं है। देखिए क्या स्थिति है, डूबते को तिनके का सहारा, दोनों डूबे हुए की स्थिति है, तो तिनके का सहारा लिया। अभी आनंद दुबे जी कह रहे थे कि 30 साल से सत्ता में है बीएमसी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ रही है। और अगर राज ठाकरे इतने बड़े ब्रांड है तो विधानसभा चुनाव में जो गढ़ है राज ठाकरे का और शिवसेना का, वहां से उनके बेटे चुनाव हार जाते हैं। राज ठाकरे अपने बेटे को चुनाव नहीं जीता पाते। आदित्य ठाकरे कैसे चुनाव जीते हैं? निश्चित रूप से एक भी सीट नहीं मिली राज ठाकरे को असेंबली में। ये कहना ठीक है कि भाई लोकसभा की 6 सीटें आती है और 3 सीटें उद्धव ठाकरे ने जीती थी, लेकिन विधानसभा की 36 सीटें आती है। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव परिणाम हुआ तब क्या परिणाम आया था, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और अभी 2 दिन पहले जो नगर परिषद और नगर पंचायत के जो परिणाम आए 288 सीट्स का, उसके अंदर सिर्फ 7 सीटें उद्धव ठाकरे को मिली है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कहाँ है। और आज जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर लड़ रहे हैं, 20 साल के बाद आप उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आ रहे हैं। राज ठाकरे को आप लोगे साथ में,
कांग्रेस के साथ आप थे तो कांग्रेस के साथ मुसलमान वोट आपको मिला था विधानसभा चुनाव में, अब मुस्लिम वोट आपको मिलेगा नहीं। बड़ा वोट चला गया आप कांग्रेस के पास, वो चला जाएगा समाजवादी पार्टी के पास, वो चला जाएगा एम्स के पास, कुछ चला जाएगा अजित पवार की एनसीपी के पास, कुछ चला जाएगा शरद पवार के पास। और उत्तर भारतीय का जो वोटर है, एक बड़ा वोट बैंक है, आज 40% का वोट बैंक उत्तर भारतीय है। क्या उत्तर भारतीय राज ठाकरे के आने के कारण आपको वोट देंगे? पूरा उत्तर भारतीय वोट आपके तरफ से चला गया है। और सबसे बड़ी बात, अभी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन राज ठाकरे उद्धव ठाकरे में नहीं हुआ है। आज 12 बजे पीसी में बताना चाहिए था कि कितने सीटों पर कौन लड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में भी नहीं हुआ है। लेकिन फर्क है, अभी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों वही सीट मांगेंगे, लड़ेंगे जहां पर मराठी मानुष का प्रभुत्व होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि मराठी वोटर से, और राज ठाकरे भी जानते हैं कि मेरे मराठी वोटर है। क्या दादर का जो जहां पर राज ठाकरे रहते हैं माहिम में, क्या वो एरिया राज ठाकरे उद्धव के लिए छोड़ेंगे? और उद्धव का जहां मुख्यालय मजबूत रहा है माहिम दादर का एरिया, क्या वो राज ठाकरे के लिए सीट देंगे? तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन ही करना इनके बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों का पावर सेंटर वही है जहां उद्धव और राज ठाकरे का। चलिए, दोस्ती तोड़ दी और मिला क्या आपको? और राज ठाकरे के पास एक विधायक नहीं है, एक पार्षद नहीं है आपके पास। उस व्यक्ति से आप कह रहे हो कि वो एसेट है आज की तारीख में। मुझे लग रहा है कि अगर इससे बेहतर होता है कांग्रेस के साथ गठबंधन करते तो उद्धव ठाकरे थोड़ी बेहतर स्थिति में आते। राज ठाकरे के साथ करके जो आशुतोष ने कहा है ये सुसाइड किया है, निश्चित रूप से ये सुसाइड करने का काम है। बताइए आनंद, पश्चाताप 16 तारीख को इनको होगा। पद्मा जी, एक तरफ तो बहुत मन खुश है कि आपके विश्लेषक लोग हमारी कितनी चिंता कर रहे हैं। शिवसेना ने ऐसा किया होता चिंता तो करते हैं सर, सबकी चिंता रहती है। सुसाइड है, ये आत्महत्या है। अरे सुनिए तो पहले, तो इसकी तो बहुत खुशी है। दुख इस बात का है कि आजकल सब के सब ज्योतिष बन जाते हैं, इतने परसेंट इनको मिल देंगे, इतने परसेंट उनको मिल जाए। अरे इंसान है, सब इंसान सोचते हैं, भोजन करते हैं, विवेक बुद्धि लगाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे खेलते नहीं रहते हैं मुंबई की जनता। मुंबई की जनता बड़ी जागरूक है। यहाँ पर रहने वाला मुंबई का समझता है कि किस नेता के हाथ में बागडोर देंगे तो वो काम करेगा, और किस नेता के हाथ में बागडोर देंगे तो व्यापारियों के यहाँ गिरवी रख देगा। ये मुंबई को अच्छे से पता है और आपको दिखेगा। अभी चुनाव को अपने उत्साह पे तो आने दीजिए, उत्कर्ष पे तो आने दीजिए। अभी तो फॉर्म भरना शुरू हुआ है। न बीजेपी और शिंदे सेना का कोई गठबंधन है, न हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन का अभी तक है। पहले थोड़ा समय तो बिताइए, जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोग पर्चा भरेंगे, प्रचार करेंगे, धुआंधार बल्लेबाजी होगी। धुरंधर पिक्चर में एक डायलॉग है कि हाँ हम घायल तो हैं, लेकिन इसका मतलब हम ज्यादा घातक हैं। घायल आदमी ज्यादा घातक होता है, ये बात को नजरअंदाज मत करिए। ठीक है जी, रणवीर ठाकरे आपने बना दिया महाराष्ट्र के अंदर। आप बड़ी खुश हो रहे थे तुहिन सेना about how there's a problem within the Mahavikas Aghadi and the Congress has been offloaded. The fact of the matter is that Ajit Pawar wants to offload you also. वो तो शरद पवार के साथ अलायंस बनाने के चक्कर में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, because we realize the importance of this tri alliance in Maharashtra. लेकिन आनंद दुबे जी ने 2 बार कहा, आपने शायद मिस कर दिया, कि हम लाभ और हानि के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये तो राहुल गांधी की भाषा हो गई। अगर आप जीतेंगे नहीं, उनको भी पता है कि ये अलायंस से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए तो बीच में 2 बार कहा कि हम लाभ और हानि से नहीं के परवाह नहीं कर रहे। See, I think we are missing the core point. The core point over here is that a majority of the Mumbai voters of Uddhav Sena were with Uddhav Sena because of BJP. So, they will not be, 50% of them will not be with Uddhav Sena, and that includes Marathi vote bank. It's a myth that the 27-28% Marathi voter of Mumbai is wholly with Uddhav Sena. Number 2, in the absence of BJP, what is Uddhav Sena? इनकी पहचान क्या है? पॉटहोल से। इनको तो अपना चुनाव चिन्ह पॉटहोल रखना चाहिए। दूसरा, जो राज ठाकरे की पहचान क्या है? लोगों को पकड़ पकड़ के पीटना। Will Mumbai today, which is aspiring for a $1 trillion economy by 2047, can it, trust these people? That is, I think the mind of Mumbaikas has changed, and the core difference is highlighted by the 80 kilometers of metro rail. पोर्ट होल से याद आया पद्मजा जी, आशीष शेलार जी नाम के एक मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। 1 साल पहले एक वीडियो उनका आया था, कॉन्ट्रैक्टर को धमका रहे थे कि निकृष्ट दर्जे की ये जो सड़क है ये पूरे मुंबई में क्यों बनवा रहे हो, और उस सड़क को बनवाने वाले एकनाथ शिंदे थे। ये तो इनके कंक्रीट और इनके पोर्ट होल्स की क्या कहें अब आपसे। आप लोग बड़े प्यार से झूठ बोलते हो, लेकिन दुनिया को सब समझता है। दुनिया भी विवेक बुद्धि वाली है। सड़कों पर, भ्रष्टाचार पर, अनैतिक पर, असंवैधानिक पर, पार्टियां तोड़ने पर, भ्रष्टाचार करने पर, दुरुपयोग करने पर, आपसे तो कम से कम ज्ञान नहीं आया था, उस पर शिवसेना ने साइन करें।
आनंद दुबे जी को यह भी बताना चाहिए कि जज के खिलाफ जो महाभियोग लेकर आए थे, दिया जलाने वाला जो मामला हुआ था, वहां पर तो अरविंद सावंत ने साइन किए। मतलब शिवसेना ने, हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना ने एक जज के खिलाफ महाभियोग में समर्थन किया है डीएमके का। अरे भाई, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मैं तो अपनी बात करूं, मैंने डीएमके को 10 बार मैंने हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी का तमगा दिया हुआ है। मैं हमेशा कहूंगा और मैं अपने विचारधारा नहीं छोड़ूंगा। मैं बाला साहब और आपने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध और किया है। आदित्य जी का शिवसैनिक हूं, ठीक है। मैं अपनी बात कहूंगा। देखिए, आपने तो कई बार विरोध किया है, पर इसीलिए कई बार लोग पूछने लगते हैं कि आनंद दुबे अभी भी शिवसेना में है या फिर शिवसेना से बाहर वो कहीं भाजपा या फिर शिंदे सेना का रास्ता नापने वाले हैं। Anyway, good to see that some people stick to their principles. Leading into the elections, we will hear a lot more of this rhetoric, but make no mistake, nothing is settled even now as far as these elections are concerned. They may seem like only municipal elections, but it's high stakes, and that can be judged simply by the way the changes are happening, and more importantly, will it show a direction of what follows.